Hello friends, welcome to ProTalent and this is our logical deduction module number 2. Here I'm going to discuss with you statement and assumption. Believe me, the wonderful session which we have prepared here for you to learn statement and assumption in a very interesting manner. I am going to give you a very perfect understanding about this statement and assumption by doing this practice questions. ठीक है, with me I'm sure you will really enjoy and more importantly you will develop a proper method and mindset to solve these questions. Remember, in your law entrance examinations, in your various other entrance examination, you get this statement and assumptions. This statement and assumption related questions come in a very interesting manner. So that is a statement and वो statement बोलने के पीछे क्या क्या assumptions होंगे वो उन्होंने 1 2 3 सेंटेंस में लिखे होंगे और उनमें से हमें बताना है कि कौन सी statement इसमें से implied है. ओके, सो क्या बोला इन्होंने, implicit होनी चाहिए, है ना. So that is called implicit होनी चाहिए. That means it is implied, which means it is basically being part of the given statement. Okay, so what is an assumption? Assumption क्या होता है? हिंदी में उसको धारणा बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? धारणा. ओके, सो इसको बोला जाता है धारणा. Now what is an assumption? Assumption is something supposed or taken for granted. समझ नहीं आया क्या हुआ? So that is basically a fact. Remember, assumption is a fact that can be accepted as true on considering the content of the given statement. जो statement उन्होंने बोले हैं उन statement के नजरिए से अगर इस given fact को अगर पढ़ा जाए तो ऐसा लगे that it is accepted and it is true and it is considered to be right. Okay, so ये है आपका assumption. Assumption बहुत मजेदार है. अगर मुझे देखना है कि ये assumption valid है कि नहीं, is there a method available or not? Yes, there is a method. What you should do? You should negate the given statement, and if you negate the assumption, it should impact the conclusion or the statement. If it doesn't impact the statement or a conclusion, believe me, that assumption is not right. Okay, so हम अप्लाई करेंगे ये मेथड यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए कि किस तरीके से ये assumption लगती है. पहला सवाल आपके सामने. अब मैं क्या करूंगा, आई हैव गिवन यू क्वेश्चन, विद एवरी क्वेश्चन आई हैव गिवन यू प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एज वेल. ओके, देखिए ध्यान से. इफ ही डज नॉट मेंड हिज वेज आई विल कॉल द पुलिस. वो अगर अपना काम पे ध्यान नहीं देगा, विच मीन्स वो अगर मुझे परेशान करेगा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा. ओके, सो दैट मीन्स अब हमें इसके पीछे का assumption क्या है ये बताना है. ठीक है, सो दैट मीन्स अगर वो मतलब अगर वो अपना काम नहीं करेगा, दैट मीन्स ही डज नॉट मेंड हिज वेज, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ही विल मेंड हिज वेज. यस और नो? सो दैट्स एन assumption. ही मे मेंड हिज वेज. यस, ठीक है. अगर वो नहीं करेगा तो पुलिस को मैं बुलाऊंगा. सो पुलिस को क्यों बुलाऊंगा? बिकॉज पुलिस आएगी और मुझे उससे बचाएगी. उससे बचाना मतलब that means police will help me. Okay, so this is also right. ठीक है. And number 3, he has been making hoax calls to me. मतलब hoax का क्या मतलब होता है? hoax का मतलब होता है you can say एक तरीके से लोगों को परेशान करने वाला you can say कॉल करना. ओके, सो hoax का कॉल अब ये पता नहीं है. ठीक है, अब वो किस तरीके से उस बंदे को परेशान कर रहा है, वो स्पेशली यही तरीके से परेशान कर रहा है या कोई और तरीका है ना, पता नहीं है. एंड देयरफॉर आंसर वुड बी 1 and 2 and therefore A is the answer. ओके, चलिए ग्रेट. ओके, दैट्स परफेक्ट आंसर. और ये आप एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा भैया. दिस इज प्राइमरली गिवन टू यू, ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 is what we are doing. It says the Finance Commission must grant more funds to our state. After all,
we are the biggest supplier of ores to the rest of India, the CM of the state has stated, CM of the state has stated that we are the largest or we are the biggest supplier of ores to the rest of India. Therefore, Finance Commission must grant more funds to us, is what his statement is. Okay, I'm sure you know Finance Commission is basically a constitutional body. Okay, आपको ये बताना है कि अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन बैठा हुआ है, ठीक है, ये आपको बताना है. बट एनीवे, सो द assumptions आर इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है. क्या बोला? फाइनेंस कमीशन इज नॉट इन अ मूड टू ग्रांट more funds to the state. Now, how do we know from this statement whether the Finance Commission is in a mood or not? ठीक है, CM is only making a statement कि Finance Commission must grant more money to us. Okay, that's number one. More funds should be given to states that supply ores. उन्होंने बोला that हमें ज्यादा पैसा देना चाहिए. After all, we are the biggest supplier of ores to the rest of India. That means CM may be saying कि जो लोग और सप्लाई करते हैं उनको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए और हमें तो पक्का मिलना चाहिए क्योंकि हम तो बिगेस्ट सप्लायर है. Do you understand the reasoning of the statement? Okay, so this looks pretty much okay. Number 3, Chief Minister has already written to the Finance Commission asking for more funds. Now, how do we know that he has already written on this? We don't know कि ऐसा कोई प्रोसेस होता है कि नहीं कि पहले रिटन डॉक्यूमेंट लिखो फिर बाद में जाकर आप स्टेटमेंट बोलो, ऐसा कुछ नहीं है. एंड देयरफॉर आंसर क्या हो जाना चाहिए? ओनली 2 इज इम्प्लिसिट, नॉट एनी अदर. ओके, सो देख लीजिए भैया, ये आपका 2 इज द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट. कमिंग टू यू कैन से क्वेश्चन नंबर 3, बहुत मजेदार है. आई थिंक दैट शी हैज गॉन मैड. लास्ट नाइट आई सॉ हर बार्किंग लाइक अ डॉग. A tells B about मधु. ओके, ठीक है, A B को बोलता है मधु के बारे में. ठीक है, सो आई थिंक शी हैज गॉन मैड. मधु इज अ फ्रेंड ऑफ A. अब वी डोंट नो व्हेन यू टेल समथिंग अबाउट समवन, ऐसा जनरल पॉइंट, ठीक है, तो ऐसे जनरल पॉइंट में ये नहीं बोल सकते कि मधु एक ही फ्रेंड है. पॉसिबली A knows मधु, दैट्स इट, इतना बोल सकते हैं, पर ये नहीं बोल सकते. ठीक है, B knows मधु. अब A B को बोलता है विथ अ नेम कॉल मधु. अब उसको ऑब्वियसली पता है मधु कौन है, तभी उसके सामने नाम देके बोला जा सकता है. सो B knows मधु चलेगा. ठीक है, सम पीपल डू नॉट बार्क लाइक डॉग्स. ठीक है, अच्छा, अब ये क्या हुआ समझ ही नहीं आया. सम पीपल डू नॉट बार्क लाइक डॉग्स का मतलब क्या हुआ? बहुत ही सिंपल सा कि ज्यादातर लोग मतलब या कुछ लोग डॉग की तरीके से बार्क नहीं करते हैं. अगर वो करते हैं तो हम उनको मैड बोलते हैं. ठीक है, सो दैट मीन्स ये इस सेंटेंस के मुताबिक चलेगा. हाँ चलेगा. सो देयरफॉर आंसर क्या होना चाहिए? बोथ 2 and 3 आर इम्प्लिसिट. ओके, सो ये देखिएगा, बहुत ही मजेदार सा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है. सो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 and 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही मजेदार है. द प्राइसेस शुड फॉल आफ्टर मे. ओके, सो दिस इज कैपिटल होना चाहिए. बाय दैट टाइम demand of food grains starts dropping. That is what an economist say. Okay, अब इसके पीछे का उनका assumption क्या है? पहला, prices will not fall before May. बोलता है मई के बाद फॉल होना चालू होंगे, तो ऑब्वियसली वो ये बोलना चाहते हैं कि मई के पहले तो होंगे नहीं. ठीक है, तभी ऐसा कुछ बोल रहे होंगे. सीधी बात है, पहला पॉइंट बराबर है. द इकोनॉमिस्ट इज इन लिंक विथ फार्मर ऑफ द कंट्री. वो फार्मर के साथ कॉन्टेक्ट में है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या? अब इकोनॉमिस्ट ने फूड ग्रेन के बारे में बोला है. ठीक है, वो फार्मरों के साथ कांटेक्ट में हो जरूरी नहीं है. ओके, ही मे बी लर्निंग इट थ्रू डिफरेंट रूट्स. ओके, अ ड्रॉप इन डिमांड ऑफ फूड ग्रेन विल रिजल्ट इन ड्रॉप इन सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन. अब ये तो उसका कोई और कंक्लूजन बोलना है, बोल सकते हैं. ये एजम्पशन नहीं बोल सकते कि ये स्टेटमेंट बोलने के पहले, है ना, इकोनॉमिस्ट ने ऐसा एज्यूम किया होगा. he has taken this as a granted thing, will not work. So आंसर क्या हो जाएगा आपका? only A. okay, only A is the answer. okay, ये रहा एक्सप्लेनेशन. वापस अच्छे से पढ़िएगा. एक तो मेरा एक्सप्लेनेशन आपने सुना और उसी चीज को यहाँ पे अच्छी तरीके से शब्दों में लिखा है. प्लीज गो थ्रू दैट. ओके, ठीक है. लेट्स से क्वेश्चन नंबर 5. प्राइम मिनिस्टर is expected
to announce an expansion in his ministry shortly, ऐसा न्यूज़पेपर ने बोला है. न्यूज़पेपर has quoted authentic sources. ये बोल सकते हैं क्या? अब न्यूज़पेपर ने authentic sources के द्वारा बोला है कि नहीं बोला है, we don't know that. ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है. न्यूज़पेपर has a reliable source for the news. रिलायबल हो सकता है, ठीक है. ऑथेंटिक कोट किया होता तो वहां पे न्यूज़पेपर ने बोला होता कि किसने ऐसा बोला है. ओके, सो देयरफॉर वन इज नॉट एप्रोप्रिएट, बट सेकंड इज देयर, को दैट इज ऑथेंटिक और रिलायबल में थोड़ा सा अंतर है. प्राइम मिनिस्टर हैज अ पावर टू एक्सपांड हिज कैबिनेट. ओके, सो दैट इज ऑल्सो एन इम्प्लिसिट पार्ट. सो आंसर होना चाहिए बोथ 2 and 3 आर इम्प्लिसिट. ओके, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या लॉजिक के द्वारा इसका आंसर क्रिएट कर रहा हूं. ओके, सो ये ध्यान रखिएगा, आपको लॉजिक अप्लाई करना है और यहां पर लॉजिकल डिडक्ट करना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. यू कैन नॉट सॉल्व सच क्वेश्चंस विदाउट कंसल्टिंग अ डायग्राम. डिफिकल्ट क्वेश्चंस नीड डायग्राम फॉर सॉल्विंग. अ टीचर टेल्स हिज स्टूडेंट. ठीक है, टीचर अपने स्टूडेंट को बोलते हैं कि भैया यू कैन नॉट सॉल्व सच क्वेश्चंस without consulting a diagram, and certain difficult questions will require diagram for solving, which means ये जो जिस questions के बारे में बात हो रही है they may be difficult and therefore they require diagram. ऐसा बोल सकते हैं. Agreed. ठीक है. Students are not intelligent. Teacher has not commented anything about the student, so you cannot comment about the student. Okay. Number 2, problem cannot be solved. अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता तो टीचर ऐसा नहीं बोलते कि ये इस तरीके से सॉल्व हो पाएगा. सो ये भी नहीं है. सच क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट. यस, क्यों? बिकॉज दे आर टू बी सॉल्व थ्रू कंसल्टिंग डायग्राम, और डायग्राम तभी यूज होता है जब क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है. सो आंसर क्या होना चाहिए? सच क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट. डी शुड बी द आंसर. ओके, चलिए, ग्रेट. क्वेश्चन नंबर 7. कर्नल मस्टर्ड did not commit the murder in the dining room with the candlestick. Therefore, Mrs. Peacock committed the murder in the conservatory with the knife. Okay, अब दो मजेदार से स्टेटमेंट दिए. क्या बोला? पहला ये बोला उन्होंने मर्डर नहीं किया इन द डाइनिंग रूम. ठीक है, इसीलिए मिसेस पीकॉक ने मर्डर किया होगा विथ अ नाइफ. ओके, सो ये इन्होंने बोला है. Let's see what are the assumptions to be provided. Murder committed either with a candlestick or with a knife. Okay, ideally हो सकता था, है ना, ये आंसर हो सकता था कि भाई murder has been committed either through candlestick or with a knife. पर ध्यान रहे, है ना, यहाँ पे candlestick is connected with another variable called dining room. Okay, so that means ऐसा बोलना कि कैंडलस्टिक और मर्डर कैंडलस्टिक और नाइफ ये दो ही वेरिएबल है, ये बोलना बिल्कुल गलत बात है. ठीक है, ध्यान रखना, कैंडलस्टिक गेट्स कनेक्टेड विद डाइनिंग रूम एंड नाइफ गेट्स कनेक्टेड विद कंजर्वेटरी, एंड देयरफॉर सिर्फ और सिर्फ ये दो अलग अलग वेरिएबल बोलना गलत है. ओके, मर्डर वाज कमिटेड इधर इन द डाइनिंग रूम और इन द कंजर्वेटरी, ये भी गलत. ऑन द सेम लॉजिक this statement is also wrong. Okay, murder was committed either by Colonel Mustard or by, you can say, Mrs. Peacock. ये भी गलत हो जाएगा. On the same logic, ध्यान रहे, तीनों तीन सेम लॉजिक से गलत है, because there are three variables are not, you can say, independent. ठीक है, they are dependent on each other. Okay, number 4, murder was either committed by Colonel Mustard in the dining room with candlestick or by Mrs. Peacock in conservatory with a knife. This is perfect. Okay, this is perfect, and therefore answer would be 4th. Okay, it is 4th only. ध्यान रखिएगा, it is not 1, 2 and 3. Now what is the reason? मैंने दे दिया है आपको रीजन. क्या रीजन है? कि भैया सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल को, ये तीन कनेक्टेड है, उनमें से एक वेरिएबल हटाकर बोल देना इज अ रॉन्ग आइडिया. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, स्टूडेंट्स एट डून्स स्काउट हाई मस्ट गेट बेटर एजुकेशन देन द स्टूडेंट्स एट द इरेस्मस हाई बिकॉज द ग्रेड पॉइंट एवरेज स्टूडेंट्स एट डून्स स्काउट्स is higher than the students at Eremus High.
ओके, एक पर्टिकुलर जगह पे उनको अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए क्योंकि वहां के स्टूडेंट्स का ग्रेड पॉइंट एवरेज दूसरी जगह से अच्छा है। ओके, चलिए लेट्स सी हाउ डू वी सॉल्व दिस। ओके, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ग्रेड पॉइंट एवरेज को इन्होंने कनेक्ट किया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ। सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए कि भाई दोनों का ग्रेड पॉइंट एवरेज निकालने का जो तरीका है वो सही है ना, दोनों का एक्चुअली सेम लेवल पे है, दोनों के पैरामीटर रफली सेम है, दैट्स द फर्स्ट थिंग, है ना। एंड नंबर 2, इट्स अ गुड मेजर। ओके, सो सबसे पहला पार्ट है द एवरेज ग्रेड अर्न बाय द स्टूडेंट इज अ गुड मेजर ऑफ द क्वालिटी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, दैट्स अ परफेक्ट assumption, तभी तो ये कंक्लूजन हो सकता है। नंबर 2, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एट डून स्काउट हाई आर गिवन मोर एम्फेसिस देन इरेस्मस। अगर वहां पे ज्यादा फोकस किया गया तो ग्रेड पॉइंट दोनों का अलग अलग तरीके से आएगा, तो हम उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। एंड नंबर 3, द ग्रेडिंग स्टैंडर्ड एट द टू हाई स्कूल्स आर रफली सेम। बिल्कुल परफेक्ट है, तो ये दोनों परफेक्ट है, तो मेरे हिसाब से आंसर है 1 and 3 ओनली। ओके, सो इट शुड बी 1 and 3, ये गलत है यहाँ पे, इट शुड बी 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 9, ओके, इट टेल्स दैट अ मेजर इंश्योरेंस कंपनी reported that approximately 80% of all traffic accidents never result in an insurance claim. So we can conclude that about 80% of all losses due to theft also go unreported. Now ये तो अजीब कनेक्शन कर दिया इन्होंने, ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर ट्रैफिक एक्सीडेंट भी कभी रिपोर्ट नहीं होता है तो सेम इज द केस थेफ्ट भी रिपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। अब पहला assumption है स्टैटिस्टिक्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस कंपनीज claims are applicable to the claims for theft, ठीक है भाई, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस वाला वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो ही जाकर ये कंक्लूजन बोल सकते हैं। सो 1 इज परफेक्ट, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स रिप्रेजेंट मोर सीरियस डेंजर टू द इंडिविजुअल ऑफ थेफ्ट। अब इसमें से सीरियसनेस क्या है दैट डजंट मैटर, ओके, बिकॉज हम इसको अप्लाई कर रहे हैं इंश्योरेंस वाली फील्ड में। Average dollar value of a traffic accident claim is equal to average dollar value of theft. ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम अमाउंट और वैल्यू की बात नहीं कर रहे, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ केसेस एंड देयरफॉर A should be the answer. Okay, चलिए ग्रेट। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल। आई थिंक यू गॉट सम क्लू कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है, आई हैव कवर्ड सर्टेन मेथड्स इन सर्टेन क्वेश्चंस। ओके, make sure that lot of practice questions which I have provided to you, you will solve it, okay, on your own through protalentdigital.com, और इसके द्वारा you will get complete support for your logical reasoning. Okay, I will be coming up with few more questions on logical reasoning. काफी मजा आने वाला है आपको, ठीक है, और आप उसका बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे protalentdigital.com के अंदर जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए उसके साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।